Hello children, I am Poonam Bagga and we are continuing with chapter 3, playing with numbers. We are now familiar with factors and multiples of a given number. We also know that what are prime numbers and composite numbers, and now we are familiar with the different tests of divisibility of numbers. Today we will be combining all this knowledge and learn about common factors and common multiples. We will take the help of one example to understand that what are common factors. We take up this question, what are the factors of 4 and 18? So we will find the factors of 4, then we will find the factors of 18, and then we will understand that what are common factors. So first of all, factors of 4. Now what is a factor of any given number? It is that number that divides the given number completely, exactly with remainder 0. ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 मिले. और ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जो दिए हुए नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर लें? यहाँ पर वो नंबर 4 है, तो वो नंबर्स वो होंगे जिनकी टेबल में 4 आता हो. सिर्फ वही नंबर्स 4 को पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं. अगर किसी नंबर की टेबल में 4 नहीं आता है तो वो नंबर 4 को डिवाइड नहीं कर सकता और इसलिए वो इसका फैक्टर नहीं होगा. तो हमें यहाँ पे ऐसी टेबल सर्च करनी है जिनमें 4 आता हो. तो हम स्टार्ट करेंगे 1 की टेबल से और हमें पता है कि 1 4 ज़ा 4. So here we have 1 as a factor of 4 and 4 itself is a factor of 4. Then we come on to the table of 2. Is 4 there in the table of 2? Yes. 2 2s are 4. So what we see here is that these numbers on multiplying give us 4. So these are the numbers which will divide 4 completely. अगर हम 4 को 1 से 4 से या 2 से डिवाइड करके देखें तो रिमाइंडर 0 आएगा. तो इसलिए ये तीनों नंबर्स 4 के फैक्टर्स हैं और हम इनको यहाँ लिख सकते हैं 1, 2 और 4. यहाँ पर ये 2 रिपीट हो रहा है 2 इंटू 2, और जैसे ही कोई नंबर रिपीट होना शुरू होता है तो हमें वहीं रुक जाना है और यहीं पे हमें सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे दिए हुए नंबर के. इसलिए 4 के सिर्फ यही 3 फैक्टर्स हैं. ओके, ऑल्सो रिमेंबर दैट 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. सो 1 and 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 4. ओके, देन वी मूव ऑन टू द फैक्टर्स ऑफ 18. फिर से हमें ऐसी टेबल सोचनी है जिसमें 18 आता है. फिर वो नंबर्स 18 को पूरी तरह डिवाइड करेंगे और 18 के फैक्टर्स कहलाएंगे. तो हम सोचते हैं 18 किसकी टेबल में आता है? 1 से स्टार्ट करते हैं और हमें पता है 1 इंटू 18 इज़ 18. फिर हम बात करेंगे 2 की टेबल की. हमें पता है 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18. 4 की टेबल में 18 नहीं आता है, 5 की टेबल में भी नहीं आता है, 6 की टेबल में आता है 6 3 ज़ा 18. लेकिन यहाँ तो नंबर्स रिपीट होना शुरू हो गए. 3 और 6 तो हमने पहले ही ले लिया था, तो हमें ये लेने की ज़रूरत नहीं है. Since the numbers have started repeating, we will stop here. We will not take this combination. We will stop here and now we will get the factors of 18 taking in this pattern. यहाँ से शुरू करेंगे, ये लेंगे और इस दिशा में इस तरह से चलेंगे. तो 18 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 6 9 और 18. These are the factors of 18. Now we will look upon common factors. What do you mean by common? Common means the factors that are both the factors of 4 and the factors of 18. जो दोनों के फैक्टर्स हैं उन्हें हम कॉमन फैक्टर्स कहेंगे. कॉमन मतलब जो दोनों का हो. तो हम 4 से ही स्टार्ट करते हैं. 4 के फैक्टर्स कम हैं तो हम 1 2 और 4 को एग्जामिन करेंगे कि वो 18 में भी हैं या नहीं. तो आप देखेंगे ये फैक्टर 1 4 का भी फैक्टर है और 18 का भी फैक्टर है. तो कॉमन फैक्टर्स में एक तो 1 आ जाएगा. इसके बाद 2 देखते हैं. 2 4 का फैक्टर भी है और 18 का फैक्टर भी है. तो सेकेंड कॉमन फैक्टर हो गया 2. देन लुक अपॉन 4. इज़ 4 अ फैक्टर ऑफ 18 ऑल्सो? No. 4 is a factor of 4 but not of 18. So 4 is not a common factor. So there are only 2 common factors, 1
and 2. So I hope you understand what do you mean by common factors. The factors which are the factors of both the given numbers. They are the common factors here. Then we take up co-prime numbers. Before we understand what are co-prime numbers, let us first analyze this question. What are the common factors of 4 and 15? So again we will write the factors of 4. हमें पता है, हमने अभी बात की थी 1, 2 और 4 फैक्टर्स हैं 4 के. इसी तरह से 15 के फैक्टर्स लिखने हैं और हमें वो टेबल सोचनी होगी जिसमें 15 आता है. तो एक तो 1 होगा ही होगा 15 का फैक्टर. 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है और 15 will be a factor of itself. We know this. The remaining factors, just think upon the table in which 15 comes. It does not come in the table of 2. Yes, in the table of 3. We know 3 5s are 15. So 3 5s are 15. Again 5 3s are 15. So these are the factors of 15. Now we will write the common factors. Common to both these numbers. Okay. Here we have 1 as the common factor, you can see. So 1. Then is 2 common. 2 is a factor of 4 but not a factor of 15. 2 जो है 4 का तो फैक्टर है पर 15 का नहीं है. इसी तरह से 4 भी 15 का फैक्टर नहीं है. और ऐसे ही यहाँ 5, 3 और 15 ये 15 के तो फैक्टर्स हैं पर 4 के फैक्टर्स नहीं है. तो ये कॉमन नहीं है. तो कॉमन फैक्टर कितने हुए? एक, और वो भी कौन? 1 itself. Okay. So such numbers which have only 1 as the common factor are called co-prime numbers. Two numbers having only 1 as a common factor are called co-prime numbers. So you can give the example of 4 and 15 because they have only 1 common factor and that is 1 itself. You can think of some other pairs such as 6 and 25. You can look upon these two numbers. If you find the factors of 6 and 25, you will find that only 1 is the common factor. सिर्फ 1 ही common factor होगा दोनों में और कोई factor common नहीं होगा. इसी तरह से आप कोई भी numbers test कर सकते हैं, उनके factors लिखिए. अगर उनके factors 1 से ज़्यादा हैं तो वो co-prime numbers नहीं है. और अगर उनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और वो भी कौन? 1 itself, तब वो दोनों co-prime numbers होंगे. Okay, so this is an important definition, an important term. Just remember it. Okay, next we have this question. Find the common factors of 8 and 20. We have to try these questions. So first of all we will write the factors of 8. We try to write it down directly. 1 is a factor of every number and every number is a factor of itself. So 1 and 8 will be the factors of 8. Then we come to the table of 2. We know 2 4s are 8. और किसी की टेबल में 8 आता है? नहीं आता है. तो यही हो गए 8 के factors. 1, 2, 4 and 8. Then we look at the factors of 20. 20 के लिए लिख लेते हैं ऐसी टेबल्स जिसमें 20 आता है. 1 into 20, फिर 2 into 10. 3 की टेबल में तो 20 नहीं आता है, 4 की टेबल में आता है, हमें पता है ये. 4 5s are 20. इसके बाद 5 की टेबल में आता है 5 4s are 20. 5 4s are 20. लेकिन हमारे नंबर्स अब रिपीट होने शुरू हो गए. हमने 4 और 5 तो पहले ही लिख लिया है तो हमें यहीं रुक जाना है. इसको भी लेने की ज़रूरत नहीं है और इस पैटर्न में यू शेप में हम चलेंगे. 1 2 4 5 10 20. तो यहाँ 20 के फैक्टर्स लिख लेते हैं. 1 2 4 5 10 and 20. Got it? Now we will write the common factors. Factors which are common to both 8 and 20. ऐसे factors जो दोनों में आ रहे हैं. कौन कौन है? एक तो 1 है, देखिए आप. 1 तो सभी का फैक्टर है तो 1 तो कॉमन आएगा ही आएगा. फिर 2 देख लेते हैं. 2 भी दोनों में है तो हम यहाँ लिखेंगे 2. फिर 4 देखते हैं. हाँ, 4 भी दोनों में है तो थर्ड कॉमन फैक्टर हो गया 4. इसके बाद 8.
8 इसमें नहीं है और ये तीनों ऊपर नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है, सिर्फ ये 3 फैक्टर्स कॉमन है, 1, 2 और 4. Got it? Then we have this number 9 and then 15. We will look at the factors of 9. We have to think the tables in which 9 comes. We know 1 is a factor of every number and every number is a factor of itself. अब 9 और किसकी टेबल में आता है? 3 3 are 9 और 3 रिपीट हो रहा है तो हम एक ही बार लिखेंगे 3. तो 3 ही फैक्टर्स हैं 9 के, 1, 3 एंड 9. फिर 15 के फैक्टर्स लिखेंगे 1, 15 और हमें पता है 3 5 are 15 और किसी की टेबल में 15 नहीं आता है, इसलिए ये 4 फैक्टर्स ही होंगे 15 के. और अब हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे. 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर, यू कैन सी, सो 1. इसके बाद 3 कॉमन फैक्टर है, आप देख रहे हैं दोनों में है तो 3 लिखेंगे. और इसके बाद 9 नीचे नहीं है, 5 और 15 के तो फैक्टर्स हैं लेकिन 9 के नहीं हैं, तो ये तीनों कॉमन फैक्टर्स नहीं हैं, सिर्फ 2 ही कॉमन फैक्टर्स हैं, 1 एंड 3. तो क्या अब ये 9 और 15 को प्राइम नंबर्स हैं? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स एक से ज़्यादा हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स इज मोर देन 1, सो दीज 2 नंबर्स आर नॉट को प्राइम नंबर्स. So here 3 is common in both these numbers in addition to 1. Okay, so 1 and 3 are the common factors. Then we have one more question. We have to find the common factors of 4, 12 and 16. So again we will write the factors of 4 first. We know 1, 2 and 4. These 3 are the factors of 4. Then the factors of 12. We write down the tables in which 12 comes. 1 into 12 is 12. Then 2 6 is 12. 3 4 is 12. And then 4 3 is again 12. The numbers have started repeating. 4 3 लिखते ही numbers repeat हो रहे हैं, तो हम यहीं रुक जाएंगे और हमारे factors यहाँ से लेकर U shape में हम लेंगे और लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 6 and 12. These are the factors of 12. Now factors of 16. Again we have to think about the tables in which 16 comes. ऐसी tables जिसमें 16 आता हो, लिख लेते हैं. 1 into 16, 2 8 are 16. 3 की टेबल में तो 16 नहीं आता है, नहीं लिखेंगे. 4 4 are 16. Yes. और अब यहाँ पे रिपीट हो रहा है नंबर, 4 2 बार आ रहा है, तो यहीं रुक जाएंगे. रेपिटेशन आते ही, स्टार्ट होते ही हमें रुक जाना है और हमारे फैक्टर्स अब हम यू शेप में ले लेंगे. 1 2 4 8 एंड 16. 1 2 4 8 16. 4 को एक ही बार लिखेंगे. So these are the factors of the given 3 numbers. Now we will find the common factors, and since the number of factors is minimum in case of 4, so we will take 4 as the base for comparison. 4 को हम base मान के compare करेंगे. 1 तीनों में है common, yes हमें पता है 1 तो common होगा ही होगा क्योंकि 1 सभी का factor होता है. So common factor is 1. Then we see 2 is a factor of all these 3 numbers. So 2 is again a common factor. फिर 4 को चेक कर लेते हैं. 4 भी common है, 4 4 और 4. इसके बाद इसमें यहाँ कोई फैक्टर नहीं बचा है तो कॉमन तो होंगे ही नहीं. 3 जो है सिर्फ इसी में है, 6 12 8 16 ये किसी में भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक एक में ही है. तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 और 4. I hope it is clear to you. Next we take up common multiples. Again we take up this question, what are the multiples of 4 and 6? Multiples, नाम में multiple multiply छिपा हुआ है, तो what are the multiples of 4? ऐसे numbers कि 4 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है वो 4 का मल्टीपल कहलाएगा. मल्टीप्लाई करने से मल्टीपल मिलते हैं. 4 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो मल्टीपल होगा. और किससे मल्टीप्लाई करें?
किसी से भी कर लेंगे, 1 2 3 4 बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास. सो वेन एवर वी मल्टीप्लाई 4 बाय एनी अदर नंबर, then the answer, the product that we get is a multiple of 4. So here we can write the table of 4. We can see 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12. ये सभी मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं 4 को किसी न किसी नंबर से, इनसे मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर्स आ रहे हैं. तो ये सभी नंबर्स 4 के मल्टीपल कहलाते हैं. ओके, so we write down the table of 4. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 20, 24, 28, then 32, 36, 40 और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे. 4 11s are, 4 12s are, आगे बढ़ सकते हैं, आगे लिखते जा सकते हैं. ये इनफाइनाइट होते हैं. हमने पढ़ा था दैट द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एनी गिवन नंबर इज इनफाइनाइट. सो हियर नाउ वी राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 6. अब यहाँ पे 6 की टेबल लिख लेंगे. वी नो 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, then we have 6 5s are 30, 36, then 42, 48, 54, 60 and so on. They are infinite in number. Infinite means uncountable. We cannot count them. They are many in number. Okay. Now we will write the common multiples. Common multiples means the multiples which are common, which are present in both the case of 4 also and 6 also. जो मल्टीपल्स 4 के भी हैं और 6 के भी हैं उन्हें हम कॉमन मल्टीपल कहेंगे. तो हम यहाँ पे देखते हैं 4 से शुरू करते हैं. 4 इसमें तो है पर इसमें नहीं है. ऐसे ही 8 4 का मल्टीपल है पर 6 का नहीं है. फिर 12 पे आते हैं. हमें दिख रहा है 12 4 का भी मल्टीपल है और यहाँ 6 की टेबल में भी 12 है. तो पहला कॉमन मल्टीपल हमें मिल गया है, वो है 12. दूसरा ढूंढते हैं. आप देखेंगे 16 दोनों में नहीं है, 20 भी दोनों में नहीं है. फिर 24, यस 24 हमें दिख रहा है दोनों में. 4 की टेबल में भी है और 6 की टेबल में भी है. तो दूसरा नंबर हो गया 24. तीसरा नंबर सर्च करते हैं. 28 आप देखेंगे नीचे नहीं है, 32 भी नीचे नहीं है, 36 यस यहाँ है और 6 की टेबल में भी है. तो 36 भी कॉमन मल्टीपल है. 36. इसके बाद हमें जो नंबर्स हैं यहाँ जितने लिखे हैं उसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें कॉमन मल्टीपल्स में एक पैटर्न दिख रहा है. देयर इज़ वन पैटर्न हिडन इन द कॉमन मल्टीपल्स. 12, 24, 36. कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? यस, इट इज़ द टेबल ऑफ 12. Now we can write the next number. We know 12 4s is 48, 12 5s are 60, 12 6s are 72. All these will be the common multiples of 4 and 6. So once we get the first common multiple, then we can simply write the table of that common multiple and then we will get the list of common multiples of the given numbers. पहला कॉमन मल्टीपल ढूंढ लें, उसके बाद तो बाकी लिखना आसान है. उसकी टेबल लिख लीजिए. सारे ये कॉमन मल्टीपल्स हैं. आप देखेंगे कि 48 भी 6 से भी मल्टीप्लाई करके आता है. हमें पता है कि 6 8s are 48 होता है और 48 4 की टेबल में भी आता है. 4 12s are 48. ऐसे ही 60 हमें पता है, 6 10s are 60 होता है और 4 into 15 60 होता है. तो ये सारे कॉमन मल्टीपल्स हैं जो 4 के भी मल्टीपल हैं और 6 के भी. इसका मतलब 4 को कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर्स मिलेंगे मल्टीप्लाई करके, याद रखिएगा, इसीलिए ये मल्टीपल कहलाते हैं. और ऐसे ही 6 को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये सारे नंबर्स हमें मिलेंगे. गॉट इट? देन वी हैव दिस क्वेश्चन, find the common multiples of 3, 5 and 6. So we will write the multiples of 3. Again we will write the table of 3. So 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24,
27, 30 and so on. Okay, so they go on till infinity. Then we will write the multiples of 5. We know 5, 10, 15. We will simply write the table of 5. 20, 25, 30, 35, 40, 45. Then we have 50 and then keep on going till infinity. Then we write the multiples of 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 and so on. Okay, now we have written the multiples of 3. These are the multiples of 3, multiples of 5 and multiples of 6. Now we will find out the common multiples. We start with 3. 3 तीनों में नहीं है, 6 इन दोनों में है पर बीच में नहीं है, 9 भी तीनों में नहीं है, 12 भी नहीं है. आप देखेंगे 12 3 की टेबल में है, 6 की में है पर 5 की टेबल में नहीं है. 5 की टेबल में तो वही नंबर्स हैं जिनमें पीछे 0 या 5 हो, तो हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने चाहिए जिनके पीछे 0 या 5 हो. 15, लेकिन यहाँ पे फिर 6 की टेबल में 15 नहीं है. फिर हम आते हैं 18, 18 भी तीनों में नहीं है, 5 की टेबल में नहीं है. 21 अगेन पीछे 0 5 नहीं है तो 5 की टेबल में नहीं है और 6 की में भी नहीं है. 24, 24 6 की टेबल में तो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर है 24 प्लस, पर 5 की टेबल में नहीं है. फिर 27, ये इन दोनों टेबल्स में ही नहीं है. फिर 30, yes 30, you can see 30 is in the table of 3, in the table of 5 and in the table of 6. So 30 is the first common multiple. अब क्या इसके बाद हम अपने आप लिख सकते हैं कॉमन मल्टीपल्स? बिल्कुल लिख सकते हैं. हमने बात की थी कि पहला कॉमन मल्टीपल मिल जाए फिर तो उसकी टेबल ही कॉमन मल्टीपल्स दे देंगे हमें. सो फर्स्ट मल्टीपल इज 30, द कॉमन मल्टीपल. नाउ द नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल विल बी अ मल्टीपल ऑफ 30 इन फैक्ट 60. 30 की टेबल लिखते रहते हैं. 30, 60, 90, then 120, then 150 and so on. These will be the common multiples of 3, 5 and 6 and you can always check it. 60 जो है 3 से 20 टाइम्स मिलेगा हमें. 3 into 20 will be 60. Then 5 into 12 is 60. We know this. Then we know that 6 10s is 60. तो ये कॉमन मल्टीपल है. इसी तरह से आप चेक करेंगे ये सभी 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी और 6 से भी. तो पहला मल्टीपल मिल जाए फिर तो हम उसकी टेबल लिख के बाकी कॉमन मल्टीपल्स भी लिख सकते हैं और इसी तरह से आगे भी आप इसकी टेबल कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके, गॉट इट. देन वी हैव this question, example 5 from your book. Find the common factors of 75, 60 and 210. So first of all we will have to find the factors of 75. हमें ऐसी टेबल सोचनी होगी जिसमें 75 आता है. हम शुरू करेंगे 1 की टेबल से. 1 into 75 is 75. Now will this come in the table of 2? No, we know the divisibility test of 2 here, that any even number is divisible by 2 and 75 is an odd number, so it will not be divisible by 2. तो अब हम यहाँ पे divisibility test भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये odd number है तो 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में आएगा. ऐड करके देखना पड़ेगा sum of the digits. Just recall it. 7 plus 5 it's 12 और 12 तो 3 की टेबल में आता है तो 75 भी 3 से डिविजिबल है. अब हमें आंसर की भी ज़रूरत पड़ेगी. 75 में 3 का डिवाइड करके देख सकते हैं. 3 2s are 6, 1 5, 3 5s are 15, 0. देखिए अब आप, तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन की भी ज़रूरत पड़ रही है. हम यहाँ पे लिखेंगे 3 into 25. इसको ठीक कर लेते हैं. 25. So
3 इंटू 25 इज 75। तो हमने यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई किया कि 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन पूरा जाएगा या नहीं, जाएगा तो ही डिवाइड करके देखें, नहीं तो नहीं। तो हमें पता चला 7 + 5 12 होता है, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, सो दिस 75 इज ऑल्सो डिविजिबल, वी गेट द आंसर 25। नाउ वी विल लुक एट द टेबल ऑफ 4। 4 की टेबल में 75 नहीं आता, हमें पता है कि 72 होता है 18 4 और 17 4 68 होता है, टेबल्स आनी चाहिए आपको। तो 75 नहीं आता है। इसके बाद 72 के बाद 76 आता है, 19 इंटू 4 76, 75 नहीं आता है। 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, लास्ट डिजिट इसकी 5 है, तो 5 से तो ये डिविजिबल है। देख लेते हैं कितनी बार जाएगा। लेट अस डिवाइड 75 बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 25, 5 5 ज़ा 25, remainder is 0. So we can write here 5 into 15. Then next number we have to look the table of 6. 6 की टेबल में 75 नहीं आएगा। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? वो नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो वो 6 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर 2 से डिविजिबल नहीं है 75, इसलिए ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। हमें पता है कि 7 10 ज़ा 70, उसके बाद 7 11 ज़ा 77 आता है, 75 नहीं आता। 8 की टेबल में 72 आता है पर 75 नहीं आता। 9 की टेबल में भी 72 आता है, 75 नहीं आता। 10 की टेबल में भी ये नहीं आएगा, लास्ट डिजिट 0 नहीं है। देन नॉट इन टेबल ऑफ 11, in 11 we get 77, not 75. It is also not divisible by 12. 12 6 is 72, 75 is not there, not in the table of 13, not in the table of 14. In the table of 15 we get it as 15 into 5. 15 5s is 75. But now the digits, the numbers have started repeating, and so we will stop here. यहीं रुक जाते हैं, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले ये नंबर्स ले चुके हैं। और अब हम फैक्टर्स लिख सकते हैं 75 के 1 3 5 15 25 और 75। ये हो गए फैक्टर्स 75 के। गॉट इट? नाउ वी विल राइट द फैक्टर्स ऑफ 60, एंड फॉर दिस वी विल लुक एट द टेबल्स इन विच वी गेट 60। पहला तो आ जाएगा 1 का टेबल, 1 इंटू 60 इज 60, दैट्स सिंपल। देन 2 इंटू 30 इज 60, वी नो दिस। देन 3 इंटू 20 इज 60, येस। 4 इंटू 15 is 60, 5 into 12 is 60, 6 into 10 is 60. So many factors you can see. Then 7 into what? It does not come in the table of 7. 7 8s are 56, 7 9s are 63. So 60 is not there in the table of 7, not in the table of 8, not in the table of 9. Then 10 6 are 60. 10 6 are 60. But now the numbers have started repeating. 10 और 6 तो हम पहले ही लिख चुके हैं, इसलिए ये लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे फैक्टर्स यहाँ से यू शेप में चलेंगे और अब हम इनको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, then 10, then 12, 15, 20, 30 and 60. We have noted down all the factors. So these are the factors of 60. Now next we will find the factors of 210, a big number. Let us now focus on the tables in which we will get this 210. First is 1 into 210, that's clear. Then 2 into what? 210 को 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 210 इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है। क्या आंसर आएगा वो देख लेते हैं। 2 1 2 0, 1 लेंगे पर 1 तो छोटा है इसलिए 0 से करेंगे। 2 0 0, 1 10, 2 5 10।
तो 105 मिल गया हमें. 2 into 105 is 210. Okay, next we will look at the table of 3. Is this number divisible by 3? क्या ये 3 से divisible है? Sum of digits find out करते हैं. 2 plus 1 is 3 और 3 तो 3 से divisible है, तो 210 भी 3 से divisible है. और आप इसको orally भी कर सकते हैं. We know 3 7s are 21 और 0 लगा दीजिए 70. फिर अब क्या ये 4 से डिविजिबल है? उसके लिए हमें लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर चेक करना होगा. जस्ट अप्लाई द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4. लास्ट 2 डिजिट्स से क्या नंबर बन रहा है? 10. इज 10 डिविजिबल बाय 4? नो, 10 इज नॉट देयर इन द टेबल ऑफ 4, सो दिस 210 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4. देन वी मूव ऑन टू द टेबल ऑफ 5. पीछे 0 आ रहा है लास्ट डिजिट, तो ये 5 से डिविजिबल है और इसलिए इसको 5 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि कितने बार आंसर आएगा. 5 4s are 20, 1 0, 5 2s are 10. Yes, it's 5 into 42, so we can write here 42. Then we move on to the table of 6. और 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल है. और हम देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, तो 6 से भी डिविजिबल बिल्कुल होगा. और हम यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू वॉट? अगेन लेट अस डिवाइड इट बाय 6. 6 3s are 18. Then we have 3 0. 6 5s are 30 0. तो 35 आ गए यहाँ पर. इसके बाद हम 7 की टेबल पर आते हैं. हमें पता है 7 3s are 21 और आगे 0 लगा लेते हैं, तो ये 7 से भी डिविजिबल है. 8 की टेबल में 210 आता है. डिवाइड करके देख लेते हैं, उसका टेस्ट भी यही है. तीनों डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं. 8 2s are 16, वी गेट इट एज 50. And then 8 6s are 48. 2 is the remainder. तो 8 से तो divisible नहीं है. It is not divisible by 8. You can see this division. The remainder is not 0. So we cannot take 8 as the factor of 210. Then what number next? Let us think about 9. What is the divisibility test of 9? डिजिट्स को ऐड करते हैं. 2 + 1 3 और 3 तो 9 से डिविजिबल नहीं है. 9 की टेबल में 3 नहीं आता है, इसलिए ये 9 से भी डिविजिबल नहीं है. देन इज इट डिविजिबल बाय 10? येस, द लास्ट डिजिट इज 0 और 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यही तो कहता है कि अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है. तो हम यहाँ लिखेंगे 10 into 21 is 210. Then is it divisible by 11? No, it is not. By 12? No, it is not. Then by 13, you can check it by dividing it by 13. It is not divisible by 13 also. Let us check it by dividing by 14. Let us divide 210 by 14. You can check it by 13 also by dividing. I am dividing by 14. 14 1s are 14. You will get 11 minus 4, it's 70, and 14 5s are 70. Yes, the remainder is 0, so the number is divisible by 14. 14 into 15, you can see. So we will write here 14 into 15 is 210. Then what after the table of 14? 14 की टेबल के बाद हम 15 की टेबल पे आएंगे, और क्योंकि 14 into 15 210 है, तो 15 into 14 भी तो 210 होगा. और यहाँ से नंबर्स रिपीट होने शुरू हो गए हैं. तो अब हम इसको नहीं लिखेंगे, यहीं पे स्टॉप कर लेंगे. और ये सारे फैक्टर्स हैं 210 के. तो अब हम इनको लिख लेते हैं. इसको रिमूव कर देते हैं. इसी तरह से इसको भी रिमूव कर लेते हैं. और अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 210. वी स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 5 6 7 10 14. 6 7 10 14. इसके बाद 15 21 30. 15 21 30.
Then we have 35, 42, 70. 35, 42, 70. Then we have 105 and 210. 105 and 210. So these are the factors of 210. We have written now the factors of 75, 60 and 210. All the three numbers. Now we will write the common factors. Okay, for this we will take this as the base of comparison. 75 के फैक्टर्स सबसे कम है तो इन्हीं को बेस मानकर कंपेयर करते हैं. सबसे पहला है 1 देख रहे हैं हम तीनों में है, तो जो भी कॉमन फैक्टर है उसको सर्कल करने से इजीली पहचान में आते हैं. तो द फर्स्ट कॉमन फैक्टर इज 1. देन 3. यस, 3 इज ऑल्सो देयर इन ऑल द थ्री नंबर्स. 3 एंड 3. 3 is there. Then what is the next common factor? 5. Is 5 there in all the three? Yes, 5 and 5. 5 भी तीनों में है. अगला नंबर है 15. चेक करते हैं तीनों में है क्या 15. इसमें भी है, इसमें भी है और हाँ इसमें भी है, तीनों में है. तो 15 भी कॉमन फैक्टर हो गया. इसके बाद अगला नंबर 25. आप देखेंगे 25 जो है 60 की टेबल में नहीं है या 60 के फैक्टर्स में नहीं है, सॉरी. और यहाँ पर भी 210 के फैक्टर्स में भी 25 हमें नहीं दिख रहा है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है. फिर हम बात करते हैं 75 की. 75 भी 60 के फैक्टर्स में नहीं है और इसी तरह से 210 के फैक्टर्स में भी नहीं है. तो यहीं रुक जाते हैं क्योंकि इसके बाद तो फैक्टर्स हैं ही नहीं, तो कॉमन होने का मतलब ही नहीं है. तो 4 फैक्टर्स हैं जो कॉमन है. देर आर 4 फैक्टर्स विच आर कॉमन. 1, 3, 5 and 15. I hope it is clear to you. Practice it yourself also. Then we have this example 6. Find the common multiples of 3, 4 and 9. Now it is the case of multiples. So we will have to write the table of 3, 4 and 9. Let us write it. 3. Then 3 2s are 6, 3 3s are 9. 3 4s are 12, 3 5s are 15, 18, 21, 24, 27, then 30 and then just go on. Okay, then we have the table of 4. Multiples of 4, we can write 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 20, 24, then we have 28, 32, 36, 40 and so on. Then multiples of 9, we will write the table of 9. 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 and so on. Okay, now we will find the first common multiple. Once we get it, then we can simply write its table to get the other common multiples. पहला कॉमन मल्टीपल मिल जाए फिर तो हम उसकी टेबल लिखते जाएंगे और हमें बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएंगे. तो पहला सर्च करना ज़रूरी है. 3 को देखते हैं. 3 क्या तीनों में है? बिल्कुल नहीं है. 6 भी आप देखेंगे तीनों में तो नहीं है. 9 भी कॉमन नहीं है. 9 3 की टेबल में है और 9 की में है पर 4 की टेबल में नहीं है 9. फिर 12 देखते हैं. 12 इन दोनों में तो है, यहाँ आप देख रहे हैं, पर 9 की टेबल में नहीं है तो कॉमन नहीं कहलाएगा. तीनों में होना चाहिए. 2 में है पर तीसरे में नहीं है तो हम उसको भी काउंट नहीं करेंगे. तीनों की टेबल में होना चाहिए तभी हम उसे कॉमन मानेंगे. 15 इसमें है पर दोनों में नहीं है. 18 इसमें है, 9 की टेबल में है आप देखिए, लेकिन 4 की टेबल में नहीं है तो नहीं ले सकते. 21 भी दोनों की टेबल में नहीं है. 24 3 की टेबल में है, 4 की टेबल में है, लेकिन 9 की टेबल में नहीं है. 27 है उसमें. फिर 27 पे आते हैं. 27 भी 4 में नहीं है लेकिन 9 की टेबल में तो है पर 4 की टेबल में नहीं है. फिर 30 पे आते हैं. 30 भी कॉमन नहीं है. ये क्या हुआ? तो अभी तक तो हमें कॉमन मल्टीपल पहला भी नहीं मिला है, तो इसके लिए हमें ये टेबल और आगे लिखनी पड़ेगी. तो थोड़ा सा और लिखते हैं. लेट अस राइट अ फ्यू मोर नंबर्स आफ्टर 33.
sorry, after 30 we will have the number 33. 11 into 3, which is 33, then 36, then 39, 42, 45 and so on. Let us check these numbers also. 33, ये भी common नहीं है, it is not there in the table of 4 and neither in the table of 9. 36, yes, 36 is there in the table of 3, in the table of 4 and in the table of 9. Now we have got the first multiple after such a long search. 36 is the first common multiple. Then what will be the next common multiple? Now simply write down the table of 36. 36 ones are 36, 36 twos are 72, 3s are 108, and now you can write down many common multiples. It's the problem only to find the first common multiple. Once we get it, we can write down its table and get the remaining common multiples. Got it? So पहला मल्टीपल हमें 36 मिल गया, इसके बाद 72 कॉमन होगा, और 72 तो हमें बहुत सारे नंबर्स लिखने पर मिलेगा आगे 3 की टेबल में, तो वो लिखे बिना ही हम पहचान सकते हैं अगला कॉमन मल्टीपल 72 होगा. फिर 36 3s are 108 तीसरा मल्टीपल, और ऐसे ही 36 की टेबल लिखते जाएंगे और हमें कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएंगे. So in this way, this was the topic of common factors and common multiples. I hope it is clear to you. In our next class, we will be taking up exercise 3.4 based on this topic. Till then, goodbye.